بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری زندگی جو بظاہر نارمل دکھتی تھی پر وہ نارمل نہیں تھی۔ ہم بہت عالی شان زندگی گزار رہے تھے، لیکن میری امی جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے تھے انہوں نے ایک دم سے فیصلہ کیا اور ہمیں خود سے دور کر دیا اور ہاسٹل میں بھیج دیا۔ وہ گھر میں کیسے اکیلے رہیں گی یہ سوچ کر ہم پریشان ہو جاتے۔ میرا نام پروین ہے، ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ ابو مر چکے تھے اور ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میں سب بہن بھائیوں میں بڑی تھی، بھائی ابھی چھوٹے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ ہم چاروں بہن بھائی ہاسٹل میں رہتے تھے۔ ہم چھوٹے تھے جب امی نے یہ کہہ کر ہاسٹل میں بھیج دیا کہ وہاں رہنے سے پوری توجہ پڑھائی پر رہتی ہے۔ ہاسٹل بھی وہ تھا جہاں سب امیروں کے بچے رہتے تھے۔ ایسے میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارا خرچہ کون اٹھا رہا تھا، جبکہ میرے ابو وفات پا چکے تھے اور میری امی کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی۔ ہمارے گھر کے علاوہ ایک اور مکان تھا جو کہ ابو ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ امی نے اسے کرائے پر انکل نعیم کو دے دیا تھا، مگر ان کا کرایہ اتنا نہیں تھا جتنا امی ہم پر خرچ کرتی تھی۔ ہم مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، ہزاروں لوگوں سے اچھا کھاتے اور پہنتے تھے۔ میں جب بھی ہاسٹل سے گھر آتی اسی کھوج میں لگ جاتی، آخر اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ایک رات مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ امی رات کو اپنے کمرے میں نہیں ہوتی۔ وہ رات کے وقت چادر اوڑھ کر انکل نعیم کے گھر چلی جاتی ہیں اور ساری رات انکل نعیم کے ساتھ گزارتی ہیں۔ پہلے تو میں چھوٹی تھی، امی کو یہ سب چھپ کر میں دیکھ رہی تھی، مگر اب میں بڑی ہو چکی تھی، ہر بات سمجھتی تھی۔ امی کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے امی سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے امی کو اس برے کام سے روکنے کے لیے ایک رات ان کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ امی نے انکل نعیم کو جو گھر کرائے پر دیا تھا اس کی ایک چابی امی کے پاس بھی ہوتی تھی۔ وہ اسی چابی سے رات کے وقت انکل نعیم کے گھر کا دروازہ کھول کر اندر چلی جاتی تھی۔ میں نے وہ چابی لی اور امی کی چادر اوڑھ لی اور انکل نعیم کے گھر چلی گئی۔ میرے ذہن میں بہت باتیں آ رہی تھیں۔ میں جیسے ہی لاک کھول کر گھر کے اندر داخل ہوئی، مجھے کمرے میں سے کچھ آواز سنائی دی۔ میں جیسے ہی اس کمرے تک پہنچی تو سامنے بیٹھے شخص کو اس حالت میں دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میرے ابو میری پیدائش سے پہلے ہی کام کے سلسلے میں یہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے گئے تھے۔ شادی کے بعد میرے والدین کے مالی حالات اس قدر خراب تھے کہ امی ابو کے زیورات بیچ کر دبئی چلے گئے۔ ابو کے جانے کے بعد میں پیدا ہوئی، ابو کو وہاں کام مل چکا تھا اور وہ پیسے بھجوانے لگے۔ 1 سال بعد جب وہ گھر آئے اور 1 ماہ بعد واپس چلے گئے، مگر جاتے ہوئے امی سے وعدہ لے کر گئے کہ بہت جلد میں تمہیں وہاں بلوا لوں گا۔ اس بات کو 1 سال گزر گیا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی انور بھی اس دنیا میں آ چکا تھا۔ پھر جب میں 4 سال کی ہوئی تو ابو نے ہمیں بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ہم وہاں 6 مہینے تک رہے اور پھر کسی وجہ سے واپس آ گئے۔ یہاں واپس آنے کے کچھ مہینوں کے بعد امی نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ میں اپنے تینوں بھائیوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ جڑواں بیٹوں کا نام سن کر ابو ہم سے ملنے آئے اور پھر اس کے بعد میں نے ابو کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ میں جب اسکول میں داخل ہوئی تو دیکھتی تھی کہ سب بچوں کو ان کے ابو اسکول چھوڑنے آتے ہیں۔ میں گھر آ کر امی سے ضد کرتی کہ ابو سے کہیں کہ وہ واپس آ جائیں۔ یہ سن کر امی تھک گئیں اور کہا کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، اسے بھول جاؤ۔ میں خاموش ہو گئی اور پھر کبھی میں نے ابو کا نام نہیں لیا۔ ہم کچھ بڑے ہوئے تو اچانک امی نے ہم بہن بھائیوں کو ہاسٹل بھیج دیا۔ ہم روتے رہے، امی سے ناراض ہو گئے، مگر امی نے ہمیں منا لیا تھا۔ امی نے کہا کہ تم لوگوں کو محنت کرنی ہے، پڑھ لکھ کر اپنی زندگی سنوارنی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم ہاسٹل میں رہو، کیونکہ وہاں رہ کر تم زیادہ توجہ سے پڑھ سکتے ہو۔ ہمیں یہاں پر ہر آسائش میسر تھی، ہم ہزاروں لوگوں سے زیادہ اچھا کھاتے تھے اور امی ہماری ہر خواہش پوری کر دیتی تھی۔ اس وقت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ابو مر چکے تھے، امی سارا دن گھر پر ہوتی تھی، تو یہ سب خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ امی ان سب چیزوں کے لیے پیسے کہاں سے لیتی ہیں؟ ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار بھی تو نہیں تھا، امی بھی کوئی جاب یا کام نہیں کرتی تھی۔ ہمارے گھر کے علاوہ بس ایک مکان تھا جسے امی نے کرائے پر دیا ہوا تھا۔ اس کا کرایہ بہت کم آتا تھا، اتنا کم تھا کہ ہم ٹھیک سے زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ پھر یہ اتنے پیسے امی کے پاس کہاں سے آ رہے تھے؟ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی یہ سوال مجھے الجھن میں ڈال دیتا۔ میں نے کئی بار امی سے پوچھا لیکن وہ ٹال دیتی۔ میں نے خود ہی ان سوالوں کے جواب تلاش کرنا شروع کر دیے۔ جب میں کچھ دنوں کے لیے ہاسٹل سے گھر آئی تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ امی ساری رات اپنے کمرے میں نہیں ہوتی۔ میں نے کئی بار جھانک کر دیکھا مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے اگلے دن بھی دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے امی کو سارے گھر میں تلاش کیا پر وہ مجھے نہ ملی۔ پھر میں ان کے بستر پر لیٹ گئی۔ میں ساری رات جاگتی رہی، مجھے پریشانی میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح کے 5 بجنے والے تھے، اذان ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آئی اور گھر کا دروازہ کھول کر گلی میں آ گئی۔
अचानक मेरी नजर अम्मी पर पड़ी जो अंकल नईम के घर से निकलकर अपने घर की तरफ आ रही थी। ये देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ ये सब कर सकती है। मुझे उस दिन पता चला कि हमारे ये सारे अखराजात कहाँ से पूरे हो रहे हैं। मैंने सोचा कि ये बात अपने सब भाइयों के साथ शेयर करूंगी कि अम्मी हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए ऐसा काम कर रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई अब बड़े हो चुके हैं, उन्होंने गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो फिर क्या होगा। इसलिए मैंने ये बात सबसे छुपा ली। मैंने सोचा कि खुद ही अम्मी से बात करूंगी। मैं अम्मी से कहूंगी कि हम तंगी में गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप ऐसा काम करना छोड़ दें जो बाद में हमारे लिए निदामत और शर्मिंदगी का बाइस बने। लेकिन इससे पहले मैं पूरी तरह जान लेना चाहती थी आखिर अम्मी वहाँ करने क्या जाती हैं। मैंने अम्मी को इस बुरे काम से रोकने के लिए एक रात अम्मी के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी और अम्मी जैसे ही बेहोश हुई, मैंने उनके कपड़ों में से अंकल नईम के घर की चाबी निकाली और अम्मी की चादर ओढ़कर उनके घर पर चली गई। मैंने सोचा था कि वो अम्मी के इंतजार में एक शख्स बैठा होगा, हाथ में शराब की बोतल होगी, मैं उसे आज रंगे हाथों पकड़ लूंगी। मगर मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। मैं जैसे ही अंकल नईम के घर दाखिल हुई, मुझे कमरे से किसी की आवाज आने लगी। जैसे ही कमरे के पास गई तो आगे का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में से बदबू आ रही थी और एक बदबूदार जिंदा लाश ने वहां मेरा इस्तकबाल किया। मैं वापस अपने घर की तरफ दौड़ी। ये सब क्या था? यह आदमी कौन था? जिंदा भी था या मर चुका था? मैं घर आकर अम्मी के होश में आने का इंतजार करने लगी कि अम्मी होश में आ जाएं ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि ये सब क्या था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अम्मी को होश आ रहा था। मैंने उठकर अम्मी को संभाला, पानी पिलाया। अम्मी को मुकम्मल होश आया। अम्मी ने अंकल नईम के घर की चाबियां मेरे हाथ में देखी तो उनका चेहरा सर्द पड़ गया। अम्मी ने घबरा कर मुझे देखा और कहने लगी, परवीन ये तुमने क्या कर दिया? उन्होंने मेरे हाथ से चाबी ली और जल्दी से उठकर अंकल नईम के घर की तरफ दौड़ी। मैं भी फौरन उनके पीछे चल पड़ी। अम्मी जल्दी से उसी कमरे में गई जहाँ से बदबू आ रही थी। अंदर एक साइड पर लगे बिस्तर की तरफ बढ़ी जहाँ एक आदमी लेटा हुआ था। अम्मी ने जल्दी से उस आदमी की करवट बदली। बदबू पूरे कमरे में फैल गई थी। मैंने जल्दी से अपनी नाक पर दुपट्टा रख लिया। अम्मी ने मेज पर रखा बर्तन उठाया और कुछ दवाइयों के कतरे उसमें डालने लगी। अम्मी ये सब बड़ी खामोशी से कर रही थी। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। आखिर में उस बर्तन में रुई भिगोई और उस लेटे हुए आदमी के जख्मों पर लगाने लगी। मैंने देखा उस आदमी के सारे जिस्म पर जख्म थे। अम्मी ने दवाई जख्मों पर लगाई। वो आदमी रो रो कर दुआ मांग रहा था, मेरे मालिक मुझको बख्श दे, मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो आदमी जोर से चिल्लाने लगा। मैं घबरा गई। तब मैंने अम्मी की तरफ देखा। वो गुस्से में मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, चली जाओ अपने घर में। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं बहुत दिनों से आपको देख रही हूँ, पहले आप ये बताएं कि कौन है ये आदमी और आप यहाँ क्यों आती हैं? मैं आज सच जाने बगैर नहीं जाऊंगी। फिर अम्मी ने उस आदमी की करवट बदली। उस आदमी का चेहरा मेरे सामने था मगर मैं उसे पहचान नहीं पाई कि वो कौन था। अम्मी ने मेरी तरफ इशारा किया, देखो अजमल तुम्हारी बेटी आई है, उसने बिलाखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। अम्मी ने जब उन्हें ये कहा, ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये मैं क्या सुन रही थी? ये मेरे अब्बू थे? लेकिन अम्मी ने बताया कि अब्बा तो मर चुके हैं। वो उठे, मेरी तरफ देखकर हैरान थे। परवीन मेरी नन्ही परी इतनी बड़ी हो गई है। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और फिर अम्मी की तरफ देखा। तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? तुम जानती हो मुझे कितनी खौफनाक बीमारी है, तुम इसे फौरन यहाँ से ले जाओ। मैंने घबरा कर अम्मी की तरफ देखा। ये तो खुद यहाँ तक आ गई थी। इसे लगता था कि मैं यहाँ छुपकर किसी से मिलती हूँ। अब यहाँ आ गई है तो अपनी बेटी को यकीन दिलाओ कि मैं यहाँ छुप छुप कर अपने बीमार शौहर से मिलने आती हूँ और हमने तुम्हारी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए इन्हें हॉस्टल भेज दिया है। मैंने अनजाने में अपनी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये तो शुक्र है ये बात मैंने अपने भाइयों को नहीं बताई, वरना वो तो गुस्से में न जाने क्या करते थे। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे अब्बू थे। मैं जल्दी से अब्बू की तरफ बढ़ी। नहीं बेटी तुम मुझसे दूर रहो, मेरी बेटी मुझे बहुत खतरनाक बीमारी है, मैं नहीं चाहता कि ये तुम्हें लग जाए। मैं चलती गई और बिस्तर के पास पहुंच गई। अब्बू आपको ये क्या हो गया है? मैंने अपने अब्बू को पहचान लिया था। बीमारी ने अब्बू को बहुत बदल दिया था। मैं अपने अब्बू की ये हालत देखकर रोने लगी और वो मुझे देखकर रोने लगे। तभी अम्मी ने हौसला दिया और मुझे सब बताने लगी। परवीन ये तुम्हारे बचपन की बात है कि तुम्हारे अब्बू हमसे आखिरी बार मिलने आए थे। उसके बाद उनकी कोई खैर खबर नहीं मिली। फिर 1 साल बाद मुझे तुम्हारे अब्बू के दोस्त की कॉल आई और उसने बताया कि अजमल मर चुका है और उसने मरने से पहले आपके लिए बैंक में बहुत से पैसे जमा करवा दिए हैं। उसने मुझे बैंक का नाम और जरूरी मालूमात दी। मैं दूसरे दिन बैंक गई। वहां जाकर बैंक वालों ने जब मुझे रकम के बारे में बताया तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये इतनी बड़ी रकम थी। मैं शक में पड़ गई कि कोई ना कोई जरूर गड़बड़ है।
कोई भी आदमी इतने कम अरसे में इतनी बड़ी रकम नहीं कमा सकता। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा बाप जरूर किसी न किसी मुसीबत में है। मैंने दोबारा तुम्हारे बाप के दोस्त को फोन किया और पूछा, मुझे सच बताओ कि मेरा शौहर कहाँ है। उसने ये सुनकर फोन बंद कर दिया, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ गई। मैं हर रोज उसे फोन करने लगी, वो मुझे नजरअंदाज करता रहा, मेरा फोन नहीं उठाता था। लेकिन एक दिन तंग आकर मुझे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बता दिया, जिसे सुनकर मैंने सोचा कि काश मैं ये सुनने से पहले मर क्यों न गई। ये कहकर अम्मी रोने लगी और अब्बू मुझे बेबसी से देखने लगे। फिर रोते हुए बोले, बेटी उस साल मैंने यहाँ से जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे ऊपर बहुत कर्ज था। मैं यहाँ रहकर कमाता तो वो कभी खत्म ना होता, और मैंने जल्दबाजी की और दुबई चला गया। वहाँ जाकर मैं पछताने लगा और मुझे अपना घर याद आने लगा। वहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, इसलिए मैंने शॉर्टकट का सोच लिया। एक दिन मुझे वहाँ ऐसी औरत मिली जो बहुत अमीर थी। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी। उसने मुझसे शादी की ऑफर की और कहा कि मेरा शौहर मर चुका है, मेरी बहुत सी दौलत है, लेकिन मैं तन्हा रहकर तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मुझसे शादी कर लो। मैंने उसे बताया कि मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन उसने ये सुनकर कहा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा परेशान हुआ, आखिर वो मुझसे ही क्यों शादी करना चाहती है, जबकि मैं इतना खूबसूरत भी नहीं था। मैंने थोड़ी सी उस औरत के बारे में छानबीन की तो मालूम हुआ कि उसे एक बीमारी है, जिसकी वजह से उसके साथ कोई भी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं। मगर फिर मेरे दिल में भी पैसों का लालच आ गया और फिर मैंने कुछ सोचे समझे बगैर उससे फौरन शादी कर ली। शादी के बाद उसके मुआहदे के मुताबिक उसका सब कुछ अब मेरा ही था। मैंने उससे रकम ली और अपने कर्जे उतार दिए। वो बहुत अच्छी थी, उसने खुद ही सब दौलत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। मैं खुश था कि मैं रातों रात अमीर बन चुका था। अब मुझे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन शादी के चंद दिन बाद मेरी बीवी बीमार रहने लगी। ये कोई जिल्द की बीमारी थी जो आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी लपेट में ले रही थी। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक ना हो पाई। उसकी बीमारी बढ़ती चली गई और ये बीमारी उसके पूरे जिस्म में फैल गई। उसे दर्द होता था और रात भर वो चीखती थी, चिल्लाती थी, और फिर एक दिन वो मर गई। मैंने उसकी आखिरी रसूमात अदा की और तुम सबके पास आने का सोचा, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। वो मुझे अपनी दौलत के साथ साथ अपनी बीमारी भी दे गई थी। मैं जानता था ये बीमारी जल्द ही फैल जाती है, इसलिए मैंने सारी दौलत तुम्हारी माँ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी और ख़ुद अपने लालच की सज़ा काटने लगा। लेकिन तुम्हारी माँ ने आखिर मुझे तलाश कर लिया और मुझे घर बुला लिया। तब हम दोनों ने फैसला किया था कि तुम लोगों को हॉस्टल भेजकर तुमसे दूर रहेंगे और मेरे बारे में तुम्हें यही बताएगी कि मैं मर चुका हूँ, इसलिए कि तुम लोगों को ये बीमारी ना लग जाए। ये कहकर वो रोने लगे। मैं सब सुनने के बाद बहुत दुखी हो गई और मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू मायूस मत हो, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मैं किसी डॉक्टर से बात करती हूँ, देखना ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये सुनकर अब्बू रोने लगे और अम्मी मुझे कमरे से बाहर ले आई। अम्मी ने मुझे बताया कि अब्बू की बीमारी लाइलाज है, बस इसका इलाज यही है कि वो हम सबसे दूर रहें। मैं आज अपने अब्बू को देखकर बहुत रोती हूँ। आप लोग दुआ कीजिए कि मेरे अब्बू जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आखिर में यही कहूँगी कि ना जाने हम लोग दौलत के लालच में इतने अंधे क्यों हो जाते हैं कि ज़िंदगी जैसी कीमती चीज़ को दाव पर लगा देते हैं। आज मैं वो सारी दौलत देकर भी अपने अब्बू की बीमारी और तकलीफ़ कम नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।